Life skills story. Okay. So, welcome back, teachers. After your lunch, so how you are feeling? First of all, I want to know. Means you people are students, feeling like students continuously for 5 hours. So, can anybody can come and say the feeling as a students? How you are feeling before the lunch and how you are feeling now? Anyone? क्योंकि वो फीलिंग तो हमको भी लग रहा है. आइए सविता मैम. नहीं मैं यहीं से बोल रही हूँ. हाँ, जब पता चला कि 5-5 घंटे या 6 घंटे का होगा तो लग रहा था बोर हो जाएंगे, लेकिन आज अच्छा लग रहा है. बोलिए जोर से बोल बेटा. आइए गुड मॉर्निंग. कल जब पता चला कि 5-5 लोग मतलब क्लास लेंगे हमें पढ़ाएगा, तो मुझे लग रहा था कि बाप रे बहुत लंबा सेशन हो जाएगा तो मुश्किल लगेगा, लेकिन अभी जो है अच्छा लग रहा है. पता चला कि 5 घंटे का सेशन होगा हम लोगों का, तो मुझे लग रहा था कि मतलब बहुत बोरिंग होगा, लेकिन आज जब सुषमा मैम ने स्टोरी सुनाना स्टार्ट किया, वो भी लाइफ स्किल, हाँ लाइफ स्किल पर, तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा. सारी स्टोरी बहुत अच्छी थी और बहुत ही मोटिवेशनल जो था ये मेरा क्वेश्चन ये भी है कि लंच के बाद आपका फीलिंग कैसा था और अब आने के बाद कैसा लग रहा है? Stomach is full and moral is high. Yes. At that time you were feeling कि बाप रे कब लंच होगा कब नहीं, कुछ मतलब कान में घुस भी रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, है ना? अब मुझे भी फील हो रहा था कि माय गॉड मैं अपना जो अगला सेशन है कैसे स्टार्ट करूंगी. मैं आपका चेहरा देख रही थी और अपना भी सोच रही थी कि कैसे क्या होगा, लेकिन लंच होने के बाद मुझे लग रहा कि फिर से वही ताजे टीचर्स मिले हैं जो एकदम फ्रेश है, जो सुनने के लिए फिर 2 घंटा के लिए तैयार है. थैंक यू. Okay, so I have to continue from here. The importance of life skills for students. जो भी हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, whatever we are doing for our dear students. We have not to forget that only teaching and giving knowledge is not much. The thing is that to make them prepare for their life. Because अगर थोड़ा कम भी पढ़े हो, लेकिन अगर सिचुएशन को टैकल करना, फ्लेक्सिबल होना, एंगर कंट्रोल करना, so if they will learn these things, they will automatically will become a very successful person in their life. So we as a teacher, we should never forget that in every period we should just take 5 to 10 minutes just to make them the learning very joyful, so that they can learn things very easily. So the importance of life skills for students: promoting positive attitudes and behaviors among the young adolescents, improving communication abilities. For example, when I teach English, I feel when I give them story writing. At that time, what I feel now, there was one Samarthya reading mission. In that, Hindi was also there and English was also there. So I encouraged the students first to read the stories and then to write down. I saw that even the very below level student who was very quiet in the class, when I said him that okay, doesn't matter, if you can't write in English, try even in Hindi. He was so happy, and the very next day he just submitted me two pages of story. Then I felt means that we have to improve their communication, whether it is in English or Hindi. And if he is unable to write English, we should just tell him even to start in whatever he is comfortable. Now, promoting healthy decision making. So decision making is very must. So anybody wants to come and say about any story about decision making or
मेकिंग पे? ओके, अगर लाइफ स्किल से कोई स्टोरी अगर बताना चाहते हो तो प्रफुल सर। चॉकलेट मिलेगा भी है। मेरा स्टोरी एक दो चीज़ों पे फोकस्ड है। फर्स्ट हम लोगों ने बात किया था लाइफ स्किल के ऊपर में। तो लाइफ स्किल में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि हम किस तरीक़ा से अपने प्रॉब्लम को हैंडल करते हैं, आइदर इन स्कूल सिचुएशन और अपने पर्सनल लाइफ में। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है शब्द का चयन करना कि हम क्या बोल रहे हैं। संस्कृत में भी कहा गया है नादधीनम जगत सर्वम, नाद के अधीन पूरा संसार है। तो जब भी हम अच्छा बोलते हैं तो उसमें एक स्पेल बॉन्डिंग होता है, आप कनेक्ट करते हैं बोलने वाले में। तो शब्द का सिलेक्शन बेहतर होना चाहिए। एक ऐसा सिचुएशन था महाभारत काल में जब अर्जुन बहुत कंफ्यूज था, सारा उसका जितना पुरुषार्थ था, जितनी भी उसकी योग्यता थी, सब जीरो हो गया सिचुएशन को देख करके। और उसी सिचुएशन में एक उनको एक गुरु मिले, कृष्ण, जिन्होंने उसके सारे प्रॉब्लम को, अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक ऐसा सिचुएशन जैसे हम लोग का प्रैक्टिकल लाइफ है, बहुत सारे सिचुएशन घिरे हुए हैं, वहां पे हम कंफ्यूज्ड है, वहां पे आपको एक इनर सोल से एक डायरेक्शन मिलता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एंड मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज द स्किल ऑफ लाइफ। वो आप सीखते हैं। कृष्ण ने उनको वहीं पे सारे ज्ञान दिए, सारी चीजों को बताया। एक दूसरा चीज है स्पेल बॉन्डिंग, जो दूसरा फैक्ट्स मैंने बताया आपको, आप जानते भी हैं। जब स्वामी विवेकानंद कोलंबो गए तो वहां उन्होंने जब अपना स्पीच स्टार्ट किया तो ब्रदर्स एंड सिस्टर से स्टार्ट किया और कंटिन्यूअस क्लाइंबिंग होते रहा। तो उन्होंने क्या किया कि अपने स्किल का यूज किया, उन्होंने सारे व्यूअर्स जितने भी ऑडियंस बैठे हुए थे सबको अपने साथ कनेक्ट कर लिया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम किस तरीका से डिलीवर करते हैं, ये भी हमारे लाइफ स्किल के अंदर आता है। अब एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं। एक बार ऐसा हुआ कि एक गरीब आदमी था, उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। वो जब अमीर लोगों को देखता था कि बड़े बड़े कार से आ रहे हैं जा रहे हैं तो बहुत दुखी होता था। एक दिन वो बैठा हुआ था मेडिटेशन में, उसने भगवान से कहा कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करो। बहुत दिन तक कंटिन्यूअस ऐसा कहता था। तो एक दिन भगवान ने उससे कहा कि तेरा सारा प्रॉब्लम हम सॉल्व कर देंगे। आज ऐसा करते हैं कि इस टाउन के, शहर के जितने भी अच्छे अमीर लोग हैं उन लोग सबको मैं डायरेक्शन दे रहा हूं कि अपने अपने पुण्य की जो गठरी है या जो भी उनकी जो कर्म की गठरी है लेकर के एक हॉल में आएंगे और सब खूंटी पे टांग देंगे किनारे किनारे। तुम वहीं पे जाना, तुम भी अपना गठरी लेके जाना और जो सबसे अमीर आदमी होगा उसके पुण्य के गठरी को तुम उठा लेना, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तो बोला ठीक है। हॉल में सारे लोग इकट्ठा हुए। भगवान ने बोला पर्टिकुलर टाइम में तुमको मैं हिट करूंगा, लाइट ऑफ होगा, तुम अपना गठरी चेंज कर लेना। लाइट ऑफ हुआ। कुछ समय के बाद जब लाइट ऑन होता है तो भिखारी अपने गठरी के साथ ही खड़ा था। तो भगवान ने उससे पूछा कि ऐसा क्यों किया? बोला कि मैं तो पहले बहुत परेशान था कि मैं अपना जिंदगी बदलना चाहता हूं, चेंज करना चाहता हूं, लेकिन जब एट ए टाइम आपने लाइट ऑफ किया मेरे को लगा कि ये जितने लोग हैं इनके प्रॉब्लम्स अलग अलग हैं। इतनी बड़ी बड़ी गठरियां थी, उसमें कितना अच्छा चीज होगा, कितना बुरा चीज होगा, किस तरह के दुख होंगे। मेरा दुख तो अपना जाना पहचाना है, जिसके साथ मैं हर दिन जीता हूं, इनके दुख किस तरीका से होंगे। तो ये सोच करके मैंने उस गठरी को चेंज नहीं किया। लाइक दैट दिस इज आवर लाइफ। और हमको अपने प्रॉब्लम्स, अपने सोच जो भी हैं उसी में स्किलफुल लाइफ जीते हुए उसको हैंडल करना चाहिए। दूसरे के प्रॉब्लम्स दूसरे ढंग के होते हैं जिसको हम नहीं जानते हैं। एंड थैंक्स टू गॉड कि आपको जो प्रॉब्लम मिला है आपकी योग्यता के अनुसार मिला है और आप भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो ऑलवेज बी ब्लिसफुल, ऑलवेज बी थैंकफुल टू गॉड एंड ऑल द टाइम अच्छा करना है, अच्छा सोचना है और स्किल वहीं से डेवलप होते चला जाएगा। थैंक यू सुनने के लिए।
मोटिवेशनल स्टोरी। ये बहुत अच्छी बात सर ने कहा कि भगवान जो है ये देख के कि हम कितना सह सकते हैं, शायद उसी हिसाब से हमें प्रॉब्लम देते हैं, इसलिए हमें उस प्रॉब्लम से लड़ना है और हिम्मत नहीं हारना है। So I was just talking about healthy decision making. So here, as we were just talking stories. By the help of the stories only, we are going to make the class very interesting and to just encourage the students to perform their academic performance also better. So again, healthy decision making. So here there is one story. This story is about Atul Mithai Wala. Okay. So here there was a man named Atul. He was a very honest man and he was a very hardworking too. So he decided how to earn his livelihood. So he decided to open a shop. So he decided to open a sweet shop. So he just opened it, all the decoration inside the shop, the sweets, the interiors, everything was very nice. A very good place he had just opened his shop. And then at last he thought just to keep a name outside the board. What should be the name of the shop? So as the shop was of sweets, so he just wrote यहाँ ताजी मिठाइयाँ मिलती हैं, he decided to write on the board. So everything was going very nice. So he just everybody was coming and the selling was going very nice. But as you know, here there are many people to give decision. So one of the man, he is his relative only, he just came and he said that everything is very okay, but on the board here it is written यहाँ ताजी मिठाइयाँ मिलती हैं, तो why to write यहाँ? The shop is here, means it's okay, it's here, so no need of यहाँ you just remove it. So he also thought that okay, remove यहाँ. Again everything was going very well. Again after some day, as you know, many people were coming, everything was going very nice, selling was very good. Then again one of his neighbor came and he said, what is written? ताजी मिठाइयाँ मिलती हैं. So he said that, do you know, ताजी जो है ना, ये बता रहा है कि यहाँ मिठाई जो है खराब भी हो सकता है, मीन्स वाई ताजी का कोई जरूरत ही नहीं है, आपकी मिठाई तो ताजी है ही, तो वाई टू राइट डाउन, जस्ट राइट डाउन मिठाइयाँ मिलती हैं. तो he just again agreed. You just see, means he is not having his own decision that whatever he has written is okay. Whatever the people are coming and saying, he is just saying okay. So again, now it is written, मिठाइयाँ मिलती हैं. So again, as you know, again somebody came and again he read, he just ate, he bought sweets also from him, and then again when he was going, he just saw मिठाइयाँ मिलती हैं. He said, are you okay? When in your shop only sweets are there, why to write मिठाइयाँ मिलती हैं? So he also thought, yes, बात तो सही बोल रहा है, यहाँ तो फिर मिठाई ही है, तो मिठाइयाँ मिलती हैं तो क्या जरूरत है? Again he agreed. He just okay, मिठाई भी है. So this way again somebody came, मिलती हैं. If the shop is here तो मिलती ही ना होगी, तो why मिलती हैं? Again he agreed and he just said okay. Again मिलती भी हटा देता है. What is this है? Then he also thought, yes, है क्या है? वो भी हटा दिया. Now a very clean board was there, nothing written. Now a very close friend of him, he came, he just saw the shop, he just had some sweets, he just bought also some sweets and he said, wow,
बहुत ताजी ताजी मिठाई रखते हो। When he was going, he just saw the board. He said, plain, neat, clean board. अरे यार, यहाँ पे कुछ लिखवाते क्यों नहीं? Now he is thinking, यहाँ लिखवाते क्यों नहीं हो? क्या? यहाँ लिखवाओ। यहाँ तो क्या लिखवाएं? यहाँ ताजी मिठाइयाँ मिलती हैं। Now just see, यही चीज वो पहले अपने मन से लिखा है था, और फिर वो किसी की बातों पे आते गया और सब हटाता गया, और अल्टीमेटली whatever he has thought, that was the right decision, the right thing. So again क्या लिखा गया? यहाँ ताजी मिठाइयाँ मिलती हैं। So here I just want to say, you make you people convinced, or just to tell you that we should develop the decision making in itself. And the same thing we have to do with our students, so that in their life, when they face such type of decision, then they can just have their own thinking. What is good, what is bad, what should be done, what should not be done. So, promoting healthy decision making. Now, preventing negative and high risk behaviors. Promoting greater sociability, teaching anger control, increasing self-esteem, self-confidence, and improving academic performance. So, the main thing to train us is that CBSE also know that we are qualified teachers, we have degree, we know. It's not like that कि training start हो गया है, इसका मतलब we are not knowing. The only thing is that polishing हो रहा है. Now the feeling of us, when we feeling before the lunch and after the lunch, ये feel जो हम लोग किए हैं, वो अब मंडे से हम लोग फील करेंगे बच्चों के लिए भी, कि फोर्थ पीरियड जब के बाद जब लंच आता है, तो सचमुच बच्चा जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पढ़ते पढ़ते बोर हो गया हो, तो कुछ ऐसा करे, कुछ ऐसा एक्टिविटी करे, कुछ ऐसा सोच के जाए. मीन्स वी हैव टू बी वेल प्लान्ड. इट्स अ बिट डिफिकल्ट, बट वी हैव टू मैनेज. जैसे हम लोग जब बीएड करते थे, तो सारा चीज हम लोग कितने प्लानिंग करके रात के 12 बजे सोते थे. मीन्स आई थिंक सबके दिल में छेद हो गया होगा वो सोच के कि कितना वर्क हार्ड करते थे. हर एक ग्रामर तक के लिए, हर एक लिटरेचर के लिए भी हम लोग सारा चीज बनाते, लेकिन अब जो है वो चीज बहुत कम हो गया है. तो ठीक है, इट्स अ बिट डिफिकल्ट जॉब, बट वी हैव टू जस्ट मेक द टीचिंग वेरी जॉयफुल. फॉर एग्जाम्पल आई विल जस्ट से, यहाँ पे अभी जो आर्ट इंटीग्रेशन जो हमारा स्टार्ट हुआ है, सीबीएसई जो करने के बोल रहा, स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 10 वी आर ऑल्सो डूइंग. उसमें क्या हम लोग को, पहले हम लोग क्या करते थे कि ऑल सब्जेक्ट टीचर अपने अपने सब्जेक्ट्स का एक एक प्रोजेक्ट दे दिया. नाउ जस्ट थिंक, 6 सब्जेक्ट्स, 6 प्रोजेक्ट, और हर में 5, 6, 10 पेज. ठीक है. नाउ व्हाट इज हैपनिंग, that is art integrated project, and that will be counted in subject enrichment. आप लोगों को जो मिला होगा उसमें subject enrichment होगा. तो जो art integration का जो प्रोजेक्ट है, वो subject enrichment के कॉलम में आपको करना होगा कि आपने क्या मार्क्स दिया है. And as what I have understood कि the CBSE what he has done ना, उसने पेयरिंग कर दिया है हर एक स्टेट को. जैसे हमारा स्टेट जो है वो झारखंड का है और वो गोवा का है. ठीक है. तो व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, फ्रॉम क्लास 1 टू 10 अगर कर रहे हैं हम लोग वो प्रोजेक्ट, तो आई डोंट थिंक कि वो झारखंड गोवा क्लास 1 से लेकर 10 तक करना है. मुझे लगता है कि हर क्लास में एक एक पेयरिंग, तभी तो बच्चा जान पाएगा. जैसे 1 में मान लीजिए सीख गया है गया गोवा और झारखंड के बारे में, तो दूसरे 2 क्लास का बच्चा कुछ और करेगा, 3 का कुछ और पेयरिंग करेगा. उससे क्या होगा कि वो हर स्टेट के बारे में एक कंपैरेटिव स्टडी, उसका ड्रेस, उसका कल्चर, उसका लैंग्वेज, उसका म्यूजिक, एवरीथिंग विल कम टू नो. और ये नहीं है कि आपको बस मतलब उसको बस पढ़ाना है, उसको जॉयफुल करना है. जैसे कि हमारे लिए डांस ही है, तो कुछ स्टेप्स दिखा के, स्मार्ट बोर्ड है उसमें वो दिखा के. ठीक है. फिर जैसे कि मीन्स और प्रोजेक्ट एक ही बनाना है. उसी में क्या होगा कि मैथ्स के टीचर भी
जैसे कि पॉपुलेशन कितना है, तो बार ग्राफ के द्वारा या फिर पाई चार्ट के द्वारा 2 पेज का अपना वो करवा सकते हैं, जिससे कि वो बच्चा जान भी जाएगा, एक कंपेरेटिव स्टडी भी कर लेगा कि गोवा का क्या है, झारखंड का क्या है, ठीक है। फिर जैसे म्यूजिक ही है, तो म्यूजिक टीचर्स जो है, यहाँ के म्यूजिक क्या है, वहाँ का म्यूजिक क्या है, तो बच्चा फिर वो घर में जाएगा तो दूसरे अपने भाई बहन को देखेगा, अपने फ्रेंड्स को देखेगा, तो और दूसरे स्टेट्स के बारे में जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये सारा चीज जो सीबीएसई कर रहा है, if everything is done in a very proper way, if we try hard from our level best, and then I think the students will achieve what he needs. So now how life skills should be developed in students? It's a very difficult job, isn't it? खास करके अगर बच्चा बहुत छोटा है ना, क्योंकि हर चीज वो समझ नहीं सकता है। So again, I will just a very short story of a father and his son. That how हर चीज को लेसन पढ़ाना, हर चीज को स्टोरी पढ़ाना, बस यही नहीं होता है, क्योंकि पढ़ने से क्या हो जाता है कि बस रीड कर रहा है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर आप उस चीज को प्रैक्टिकल करके अगर बता दो, तो मुझे लगता है कि बच्चों को प्रैक्टिकल ज्यादा समझ में आता है। आपको फिर बताने का, पूछने का जरूरत नहीं, वो बच्चा खुद समझ जाता है। प्रैक्टिकल ऐसा चीज है। हर एक सब्जेक्ट टीचर भी जो पढ़ा रहे हैं, अगर उसका एग्जाम्पल वो एवरीडे लाइफ से, किचन से, केमिस्ट्री टीचर का है, फिजिक्स जो है वो साइकिल चलाने से लेकर कार चलाने तक में, अगर वो थोड़ा एग्जाम्पल है तो उसमें डालते जाएगा ना। हम लोग इंग्लिश टीचर अब क्या करेंगे, तो वो अगर कन्विंस करेंगे कि आप अच्छा से बोलने लगे तो इंटरव्यू में आपको काम आएगा। ये स्टोरीज मतलब कि क्या है, स्टोरीज इज नथिंग। ये चैप्टर है, हमको चैप्टर पढ़ाना, लेसन खत्म करना, क्वेश्चन आंसर रटाना, दैट इज नॉट टीचिंग English or Hindi or Sanskrit. Our main motive is to speak very effectively, properly, ठीक है। So the story is the father and his son. Once a father and his son was walking on the surface, means you can see the peak of the mountain. Okay. The son suddenly shouted. बच्चों को जानते ही हो, shout कहीं भी करेंगे। Shouted hi. It echoed back. Hi. The son felt interested. उसको अच्छा लगा कि है हाय बोले, उधर से आवाज आ रहा है, इको हाय। He again shouted, I am great. Again echoed, I am great. Again he said, I love you. Again it echoed, I love you. The son said again, I want to help you. It again echoed, I want to help you. Now the boy was very excited that what is happening. जो भी हम बोल रहे हैं वो बार-बार इको कर रहा है। He asked his father, "Okay, what is this? What is all about this? Who is giving back my whatever I am saying?" Then the father said that though you are very young, छोटा सा बच्चा था, I think 2-3 क्लास का, I will tell you very interesting thing. This is life. Whatever you give, you get back. The moment you said, I love you, you get back that I love you. When you said, I am great, the world said, I am great. The moment you said, I want to help you, the world said, I want to help you. So this is life, biggest truth, and whatever you give, you get back. So please remember that ever you do anything, whatever it is, good, then what will come good, and if bad, then bad. So what is the I will just end by after this slide, that characteristics of a classroom environment supportive of life skills education. Reflection of real life situation. As I have said you, means ये रियल लाइफ, जब हम स्टोरी बताई, एक रियल लाइफ था कि बच्चा बस घूमने गया है और बातों ही बातों में बहुत ही बड़ा चीज जान गया कि जैसा हम देंगे वैसा ही हमें वापस मिलेगा। Collaboration among teachers, discipline and students. As I said you before also, कि okay, there should be a not too much but a little friendly environment so that the student can come to you
to ask his problem. Because sometimes what happen ना कि वो इतना डरा हुआ रहता है कि my God बहुत strict teacher है, डांट देगी, कुछ भी बोल देगी, तो वो उसको जो प्रॉब्लम रहता है वो अपने पर ही रख लेता है. Now this encouragement of curiosity, exploration and investigation. तो ये सब चीज के लिए CBSE पूरा जोर शोर से लगा हुआ है. अभी हमारे स्कूल से स्कूल इनोवेटिव एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें 5 टीचर हमारे, जिसमें कि विवेक सर हैं, अर्चना मैडम है, अनुपमा मैम है, अलका मैम है और हम हैं, और अभी फिर और टीचर्स का नाम मांग रहा है कि उसमें बच्चों को, जैसे एक सोच था ना कि केवल बिजनेस में नहीं जाने देना है, आपको जब है तो गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए, बिजनेस जो है फेलियर है, तो उसके लिए क्या है कि स्टार्टअप क्या होता है, रिस्क लेना क्या होता है, उसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, वो बच्चे को भी हम लोग 6 से ही. और एक बात हम बता रहे हैं कि आई वॉज वेरी मच सरप्राइज्ड कि जब हम लोग एक टॉप टाइम जो हमारा नवंबर के एक्टिविटी में हम लोग को करवाना था, तो पहले बच्चों को जाके सेलेक्ट किया, तो जो बच्चे को इंटरेस्ट था कुछ न्यू, कुछ इनोवेटिव टाइप का, मीन्स दे वेर नोइंग कि व्हाट इज स्टार्टअप, व्हाट इज दिस, हाउ टू डू, and they just raised their hands and we just did a very nice program over here. So we should encourage curious जो बच्चे हैं, जो कुछ innovative कुछ जानते हैं, उनको चाहिए कि टीचर्स, तो इसीलिए हम लोगों को ट्रेनिंग करवाएगा कि अगर उस तरह का कुछ बच्चा है तो कम से कम वो जाने कि कौन सा टीचर है जो जिनके पास मैं जाऊंगा, मैं अपना इनोवेटिव आइडियाज बताऊंगा तो वो टीचर मुझे आगे करेगा. क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग से अच्छे अच्छे आइडियाज उनके पास होते हैं, जैसे कि तिलक मेहता का आप लोग देखिएगा तो पता चलेगा कि वो स्कूलिंग भी कर रहा है, स्टार्टअप भी किया हुआ है और किस तरह से मतलब कि वो सारा चीज संभाल रहा है. तो कुछ आइडियाज जो है क्या हो जाता है कि वो दबा रह जाता था, तो अब है कि नहीं, टीचर्स को उनको आगे बढ़ाना है. रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, एक्नॉलेजमेंट ऑफ एफर्ट्स, नॉट जस्ट परफॉर्मेंस. हम लोग केवल क्या देखते हैं, परसेंटेज देखते हैं, हम लोग ये देखना ही भूल जाते हैं कि उसने मेहनत कितना किया है, क्योंकि हर बच्चा का क्वालिटी अलग होता है, हर बच्चा 100% 95% नहीं ला सकता है. आप उसका एफर्ट देखिए, उस गहराई को देखिए कि वो सचमुच कितना देर पढ़ा, कितना पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है. केवल ये देखना कि तुम्हारा मार्क्स कम है तो तुमने नहीं पढ़ाई किया, उस पर डांटना, आई थिंक दैट इज नॉट गुड. Focus more on process than products और final presentation. आप final presentation देखने से पहले बच्चा का जो मेहनत है वो आप देखिए कि उसने कितना मेहनत किया है. So the end of the session. If you want your children to be smart, then tell them stories. कितना story सुने आप लोग? Story, story, story. If you want them to be smarter, then tell them more stories. If you want them to be the smartest, then tell them even more stories. और stories सुनना है? I think no. So, by Albert Einstein. Thank you.